अपने आज की आराधना सभा को आरंभ करेंगे और इससे पहले कि हम आराधना में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए एक वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसकी नज़दीकी में चलेंगे। भजन संहिता 103 Psalms 103, वहाँ लिखा है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो कुछ हम में है वो उसकी आराधना, उसके पवित्र नाम को जय कहेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करेंगे। हम मांगेंगे कि पवित्र आत्मा आप आके हमारे बीच में आप अपना कार्य को करें। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक वो चीज़ जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचता है, उस सब को हम यीशु मसीह के नाम से बांधेंगे और दूर करेंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये सौभाग्य, ये प्रिविलेज जो हमें मिला है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर के एक साथ जुट करके हम आराधना कर सके। आइए हम उसके नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, लॉर्ड देयर इज नन लाइक यू जीसस। Oh, we worship you, God. We adore you, Lord. We exalt you, Lord Jesus, for who you are. Thank you, Jesus. Be lifted up, O God. Be magnified in our lives, O Lord. Yes, Lord, and in this place, O God. We lift your name, O God. We bless your holy name, O God. Prepare us, O Lord. Prepare us, O God. Prepare our hearts. Prepare our mind, O God. Prepare us to worship you in spirit and in truth, O God. Because it's all about you, Lord Jesus. It's all about you, God. May you increase and we decrease, O Lord. Yes, Lord. Take away everything that is not from you, so that we can worship you in freedom, O Lord. Because wherever you are, O Lord, there is freedom. Thank you, Lord, that we can worship you like this, O God. Thank you for this privilege, O Lord. We are mindful, O God, what you are doing amidst us, O Lord Jesus. Thank you, God, for your grace, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया से हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। Bless the Lord, O my soul. Worship his holy name. Let's sing like never before and worship the holy name of our God. Song again, whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before.
slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my Soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Oh, Sing like never before. oh, my soul. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Yes, I Worship your holy name. Oh, Jesus, we worship your holy name. Oh, that's the name above all names. It's Jesus. We worship you, Lord. We worship your holy name. We worship your holy name. Oh, we worship your name, oh Lord. Oh Jesus. Yes, Lord. For there is only one name that is given to us, O God. And there is power in the name of Jesus. Oh, this is our authority. When we say in the name of Jesus, it is done for us. We thank you, Lord. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर. हालेलुया प्रभु. तेरे नाम को अंगीकार करते हैं. कलीसिया, आज जब आप यहाँ पर हैं, हो सकता है आप कोई परेशानी में घिरे हुए हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो. आइए अपनी परिस्थिति के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करें. Let's declare the name of Jesus over every problem, over every sickness that is there. The name of Jesus, the powerful name. Yes, Lord Jesus. We lift your name, O God. Hallelujah. चाहे तुमको दिल से गाएंगे,
हालेलुया प्रभु, इस नाम में शांति है परमेश्वर। ओ यस, हर एक बात का परमेश्वर का हाल आमीन है। ये नाम हर नामों में ऊंचा नाम है। इस नाम के समान और कोई भी नाम नहीं। हर एक घुटना टिकता है और हर एक जीव अधिकार करता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, us, O God, and walk in us, O Lord Jesus. We want more of you in our lives, O God. More of you, God. So much more of you, O Lord. For only you can satisfy, O Jesus. Jesus. We welcome you, Lord. For we know that you are working, O God. You are working. You're working in this place, Jesus. Yes, Lord. Touch us, O Jesus. Oh, Jesus. Chule pavitra atma, chule दिल को तू बदल दे मुझको इस जगह में. Yes, Lord. Come and work in us, O God.
Touch us, O Lord Jesus. तू छू ले। Yes, Lord. तू छू ले प्रभु कि हम तेरे जैसे बन जाए परमेश्वर। We want to be more like you, God. We want you to increase and us to decrease, O Lord. We want more of you, Jesus. Yes, Jesus. छू ले प्रभु। Yes, Lord. प्रभु हम अपने आप को एक बार फिर आपको समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका कार्य हमारे अंदर हाँ और आमीन के साथ होने पाए, ताकि प्रभु हम आपको हमारे बीच में कार्य करता हुआ देखें। Come and take your rightful place, O Lord. हम तैयार हैं परमेश्वर आपके कार्य के लिए। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। हमारा जीवन आप ही के बारे में हो प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को महिमा मिले प्रभु। Be exalted, Lord. In Jesus' name we ask and pray. Amen. आइए हम लोग ने अभी गीतों के द्वारा या तो गवाही के द्वारा, ठीक है ना, हम लोग परमेश्वर को महिमा करते हुए परमेश्वर को आराधना अर्पण किया है हमारा धन्यवाद का वेद को। आइए अभी समय है परमेश्वर का वचन हम सुने। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो परमेश्वर आज सुबह हम सबको कहना चाहता है उसको सुने। इसीलिए आइए हम लोग अपना मन को खोलकर अपने हृदय को तैयार करते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। आप जानते हैं इन दिनों में हम लोग लगभग 3 सप्ताह हो गया है, हम लोग क्या के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग एक सीरीज थे वहाँ पे ऑल इन, प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरे शामिल होने का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज उसी का सीरीज का अंत होगा, तो उसी के लिए हम लोग बाइबल टर्न करेंगे। वी विल टर्न टू द बाइबल। लूक 9 अध्याय उसका 57 से लेकर 62 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके यहाँ से हम आज बात करेंगे। As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरे चरणों में फिर से आते हैं प्रभु। हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे आंखें कान को छू ले। इस जगह पे पवित्र आत्मा तू हमें प्रभु अगुवाई करे, हम सबको बात करे प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से हम बांधते हैं। हर एक बात आपके वचन सुनने से, आपके वचन की ओर हमारे ध्यान लगाने से जो हमें अलग करते हैं, इन सब बातों को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा हमारा बीच में होने पाए। हमारा नींद, थकान, सब जो हमें आपके वचन सुनने से हमें अलग करेगा, सब बात को दूर करते यीशु मसीह सामर्थी नाम से। और हमारे कान
आंखें, ध्यान सब आपकी ओर हम लगाते हैं। प्रभु हमें सहायता करें ताकि जो हम सुनते हैं तो हम सुनकर ख़त्म ना हो, लेकिन सुनने वाला जो बातों जो है उसको हम समझ में आए। उसके बाद हमारे बीच में जो आपके कार्य या जो होते हुए बातों को हम देखकर आपके नाम को महिमा कर पाए और आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन को जीने पाए। हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। ओके, जो हमने पढ़ा है वो लूका सुसमाचार में लिखा है। आप अपना बाइबल से जाकर आपके घर में भी फिर से स्टडी कर सकता है, लेकिन यहाँ में जो बता रहे वो जो वर्णन हुआ, जो कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट डिसाइपलशिप विद जीसस। यीशु मसीह का चेला बनने का या तो यीशु मसीह का चेला होने का मतलब क्या है, इस बात को यहाँ में साफ साफ बताया जा रहा है। और यीशु मसीह ये तीनों को बात किया जा रहा है। सबसे पहले व्यक्ति क्या बोलते हैं, सबसे पहले व्यक्ति यीशु के पास आके ये कहता है कि आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आप जहाँ जाएगा, ठीक है, आपका पीछे मैं हो लूँगा। ठीक है, ये कहता है। पहले वाला क्या बोलते हैं, आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। टू हुम, यीशु को बोल रहा है। ठीक है, सो तब यीशु उसी पहले व्यक्ति को जवाब देते हैं कि यू नो foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. ठीक है, उसी को कैसे जवाब दिया कि लोमड़ी के लिए घर है, चिड़िया के लिए उसका घोंसला है, लेकिन यू नो मनुष्य पुत्र मतलब यीशु मसीह अपना आप को बोल रहा है के लिए उसका सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है करके पहले वाला व्यक्ति को बोलता है। किसको बोल रहा है, आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। जहाँ आप जाएगा वहाँ मैं आपके पीछे होलूंगा, उसको ये कहता है। देन ये व्यक्ति कहता है ओके देन आई एम आउट। ठीक है ना, ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है मैं यू नो ऐसा है तो हम चलता हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होंगे, मैं सोचते थे, इसलिए मैं आपका पीछे चलना चाहते थे। ठीक है ना, जीसस आई विल फॉलो यू। यू नो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, जीसस आई वांट टू फॉलो यू, वो डिक्लेयर तो कर रहा है यीशु आपके पीछे मैं चलूँगा, यीशु आपके पीछे मैं होने के लिए तैयार है, बट मेक श्योर दैट आई हैव ऑल द कंफर्ट of this world that offer me no in my life। ये व्यक्ति जो पहले बार जो यीशु मसीह कह रहा है वो उसका जो पर्सपेक्टिव क्या है, यीशु मसीह के पीछे चलूँगा लेकिन मेरे को वो दुनिया जो जितना भी कंफर्ट जो ऑफर करते हैं वो भी मुझको चाहिए। I will need a house to live, I will need a comfortable life, I will not be uncomfortable, but as long as I am comfortable, Jesus, I am ready to follow you। जब तक मेरा जीवन में जो भी मेरे को चाहिए, जो भी मुझको चाहते वो आप मेरे लिए इंतज़ाम करेगा तो मैं आपके पीछे होने के लिए तैयार है। Then यीशु जीसस से नो 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 यू नीड टू कम ऑल इन फर्स्ट। ठीक है ना, यीशु मसीह कह रहा है नहीं नहीं आपको सबसे पहले अपना आप को पूरे शामिल करो मेरे को। ठीक है, तब ना वो देखा जाएगा, यही कह रहा है। Why he say foxes have hole, birds have nest। ये लोमड़ी और चिड़िया को लेकर क्यों ये आदमी को बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उसका परसेप्शन ये आदमी का जो दिमाग में जो सोच में ये जो कहने का पीछे में क्या लगा कह रहा है उसको यीशु मसीह जान गया है, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, ओके यू मे कम, ओके यू वांट टू फॉलो गुड, but what you are thinking, what your attitude, what you are after, ठीक है, वो मेरे पास हो सकते नहीं होगा। You will not have always comfort in your life. Maybe sometime you may have to go through uncomfortable life। ठीक है, ये बात यीशु मसीह इस व्यक्ति को कह रहा है। And then to the another one, the second person जो है क्या करते हैं,
पहले वाला तो वो खुद आके बोलते हैं मैं आपका पीछे हो लूँगा, और दूसरा वाला को यीशु मसीह कहता है, हो सकता है उसका रिलेटिव्स हो सकता है उसको अच्छा जानने वाला व्यक्ति होंगे, कहता है ही सेड फॉलो मी, ठीक है ना। उसने उसको कहा है मेरे पीछे हो लो, कहते हैं मेरे पीछे हो लो। देन द सेकंड मैन सेड लॉर्ड लेट मी फर्स्ट गो एंड bury माय फादर, ठीक है। सेकंड वाला क्या कहता है, प्रभु मैं पहले मेरे घर जाकर मेरे पिता, लेट मी bury माय फादर एंड देन आई कम एंड फॉलो यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यही जवाब देते हैं, ओके। जीसस सेड टू हिम, यीशु मसीह का यहाँ में उत्तर जो है बहुत हर्ष थोड़ा मुश्किल वाला दिया है, लीव द डेड टू bury their own dead, but as for you go and proclaim the kingdom of God. This is what Jesus said to this man. यीशु मसीह सेकंड आदमी को कहता है मरे हुए लोगों को अपने मुर्दे गाने दो, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आपके पास काम है, क्या है, परमेश्वर का राज्य के बारे में घोषणा करने के लिए आपको हमें बुला रहा हूं, कम फॉलो मी। देन दिस मैन सेड आई हैव टू गो एंड bury माय फादर, ठीक है। आई वांट यू टू फॉलो मी बट ही हैज़ एन एक्सक्यूज, ठीक है। उसके पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज जो है, ये व्यक्ति कहता है कि मेरे पास मेरे पिता है, मेरे पास मेरे माता है, मेरे पास घर में बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर दबा रखा है, पहले मैं उसको संभालूं उसके बाद आपके पीछे आऊं, ठीक है। ये बात यीशु मसीह को कह रहा है। तब यीशु मसीह बोल रहा है कि जो आप कह रहा है, जो आपके बोझ जो है, ठीक है, उसको परमेश्वर का हाथ में सौंप दो। कहने मतलब है कि क्या आप, ठीक है, मुझको या तो परमेश्वर का राज्य को सब कुछ के ऊपर ढूंढ सकता है। लास्ट संडे का मैसेज याद है, गॉड्स प्रायोरिटी माय प्रायोरिटी, परमेश्वर का प्राथमिकता जो है क्या है, मेरा प्राथमिकता है। सो ये व्यक्ति को कह रहा है क्या आप अपना प्राथमिकता जो है परमेश्वर को रख सकता है, क्या आप अपना प्राथमिकता जो है, आपका परिवार का प्राथमिकता जो है परमेश्वर का राज्य का प्राथमिकता रख सकता है, ये बात कह रहा है, ठीक है। द आंसर दैट जीसस रिस्पोंडेड टू द सेकंड मैन, नो द मीनिंग इज दिस, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे दुनिया में बहुत सारा, हमारा जीवन में बहुत कुछ हमको करना है, बहुत कुछ हमारे जीवन में हम लोग को अचीव करना है, बहुत जगह में हम लोग को जाना है, बहुत काम करने के लिए बाकी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सब बहुत कुछ के ऊपर क्या आप परमेश्वर, यीशु कह रहा है, मुझको प्राथमिकता में रख सकता है क्या, ये कह रहा है। कम फॉलो मी, आई हैव अ वर्क फॉर यू, तो यू हैव अ कॉल, अ स्पेशल कॉल, आपको हम बुला रहा हूँ, बहुत स्पेशल कॉल है आपके पास, ठीक है। क्या आप मेरे राज्य के लिए काम करेगा, ठीक है। देन ये व्यक्ति कहता है कि मेरे को काम है, मेरे को जाकर ये पिता का जो गरने का जो काम है पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका जो एक्सक्यूज है सबसे बड़ा, ठीक है। हम लोग अभी का कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा, हम अपना कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा तो क्या बोले, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। अभी आप छुट्टी मांगेगा तो ये मरे हुए बातों को लेकर छुट्टी मांगे तो आपको देगा ही, ठीक है ना, छुट्टी जितना भी बिजी है। तो ये व्यक्ति कह रहा है, ये कह रहा है। सो देन जीसस सेड, you have a purpose, there is a call, there is a purpose, there is something that I need you to do, there is something that you need to respond to this call, you need to go all in, आपको पूरे शामिल होने की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को भी बोल रहा है आप भी पूरे शामिल होने की ज़रूरत है, go all in for Christ, ठीक है, ये बोल रहा है। एंड देन द लास्ट वन, ये तीसरा व्यक्ति फिर से आते हैं एंड ये व्यक्ति भी फिर से घोषणा करते हैं, आई विल फॉलो यू लॉर्ड बट फर्स्ट लेट मी से फेयरवेल टू दोज एट होम, ठीक है ना। तीसरा व्यक्ति क्या बोला,
तीसरा व्यक्ति भी ये बोलते हैं कि प्रभु आपका पीछे मैं चलूँगा, प्रभु आपका पीछे मैं हो लूँगा, लेकिन फिर से ये हाल लेकिन आता है, लेकिन पहले मैं घर में जो लोग हैं वो लोग को जाकर बाय बाय करके तो फेयरवेल करते, थोड़ा पार्टी देकर या तो मेरे लिए पार्टी कराकर हम वापस आएगा, उसके बाद मैं देख लूँगा और आपका पीछे हो लूँगा। देन जीसस से नो वन हु पुट हिज हैंड टू द प्लाउ एंड लुक्स बैक इज फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखते हैं वो परमेश्वर का राज्य के लिए या तो परमेश्वर के लिए लायक नहीं है, कहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहने के मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने कमिटमेंट ले लिया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसके लिए जीने के लिए, उसको अपना प्रभु बनाने के लिए निर्णय लिया है, तो देयर इज नो टर्निंग बैक। ठीक है ना, आपको फिर से पीछे मोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग ये गीत गाता है ना, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी करके हम लोग गाते हैं ना, गाते गाते पानी में जाता है ना। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि अगर यदि आप मेरे पीछे होने के लिए, अगर यदि आपने ये निर्णय ले लिया है कि देयर शुड बी नो टर्निंग बैक, ठीक है, आपको पीछे फिर से मोड़ना नहीं है। सो टुडे व्हाट आई वांट टू फिनिश दिस सीरीज, ये सीरीज का जो एंडिंग का ऑल इन का एंडिंग में जो हम एंटाइटल करना चाहते हैं वो है नो टर्निंग बैक। सब कोई बोलिए नो टर्निंग बैक। सुनाई नहीं दे रहा? सब कोई बोलिए नो टर्निंग बैक। यस। सो इस बात को हम लोग ये तीनों व्यक्ति का कहानी से हम लोग देखेंगे। हम लोग इसी जो ऑल इन के बारे में 3 सप्ताह सुनते आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा तो मैंने तो एम्फसाइज की बात किया था, क्या है कि यीशु मसीह का बुलाहट जो है हम लोग को, ठीक है, द कॉल दैट जीसस कॉल अस इज नॉट अ रैंडम और अ पार्शियल कॉल। ठीक है, यीशु मसीह जो हम लोग को जो बुला रहे हैं सो रैंडमली बुला ही नहीं रहे, या तो आधा, ठीक है, नो हाफ वे पाथ वे के लिए बुला ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कहता है कि द कॉल दैट ही हैज गिवन अस इज टू अ कॉल टू फॉलो हिम कंप्लीटली, ठीक है ना, पूरा पूरा दिल, पूरा मन, पूरा शक्ति, पूरा सामर्थ, ठीक है, उसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है करके हमने बात किए थे। हम लोग ने देखा व्हेन जीसस कॉल हिज कोर डिसाइपल्स, 12 चेले को जब यीशु मसीह ने बुलाया था, ठीक है, उसका पीछे चलने के लिए, बाइबल में जितने भी जो लोग जो उसके पीछे जो 12 लोग थे, कोर लोग थे, दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे फॉलो जीसस। मछुआरा लोग मछली पकड़ रहे थे, अपना जाल को छोड़ के, ठीक है ना, उसके पीछे होने लगा। जो टैक्स कलेक्टर्स लोग जो था, पैसा बहुत कमा रहे थे, टैक्स कलेक्ट करके जब बुलाया सब छोड़ के उसके पीछे आ गया। ठीक है ना। सो जीसस कॉल्ड हिज डिसाइपल और हिज डिसाइपल लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे केम एंड दे फॉलो हिम। हम लोग ने यही देखा था। इवन इन द बुक ऑफ एक्ट्स इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद नई कलीसिया स्थापित करके जब नए नियम जब आ जाते हैं तो व्हेन द चर्च स्टार्टेड ग्रोइंग, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया जब बढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे भी हम लोग देखे कि बिलीवर्स जो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए लोग जो थे क्या करते थे, दे वुड सेल देयर हाउस, देयर लैंड एंड दे ब्रॉट देयर प्रॉपर्टी एंड लेड एट द फीट ऑफ द अपोस्टल करके बाइबल में साफ लिखा है। जो भी अपना है वो सब सेल करने के बाद वो जो भी मिलता है वो जो प्रेरित के सामने लाकर रखते हैं और प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए वो लोग रोज मिलते थे। दे मीट इन द हाउस डेली, रोज घर घर में मिलते थे
they meet in the temple, मंदिर में भी मिलते थे, and they share their meals, साथ में खाना खाते थे, and they speak the word of God. When they share their meal, just खाते खत्म नहीं होते हैं, वो लोग परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का राज्य में बात करते थे, and they will go all in for Christ in their life. ठीक है ना, ये हम लोग नए नियम में शुरुआत का जो कलीसिया में हम देखते हैं. This is why we need to do connect group in our church. हम लोग जो कनेक्ट ग्रुप बोल रहा है, जब ये ग्रोथ ट्रैक का क्लास जब शुरू होते हैं तो ये कनेक्ट ग्रुप का मीनिंग निकलेगा. जो हम लोग अभी कर रहा है नॉट एग्जैक्टली कनेक्ट ग्रुप है. ठीक है, कनेक्ट ग्रुप क्या होता है? कनेक्ट इज ग्रुप इज दैट इज वेयर यू कैन कनेक्टेड in relationship with others. ठीक है ना, not just coming to the church on संडे के दिन चर्च में आके ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा था ना कि we need to connect to one another, we need to open our heart for others. हम लोग एक दूसरे के साथ, कलीसिया में देह है, प्रभु यीशु मसीह शीर है, और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है. ठीक है ना, that's why we need to have connect group. So why connect group? Because I can encourage others, as I commit my heart to God, and at the same time others can encourage me. जो कनेक्ट ग्रुप है क्या के लिए? तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए है. You got to connect to one another. हम सब भाई बहन लोग पिता परमेश्वर का बच्चे हैं, हम लोग एक दूसरे के कनेक्ट करके एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है. आमेन. So why do I go all in? क्यों हम ये बात कह रहे हैं? हम सब पूरे शामिल होना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और परमेश्वर ने हमारे लिए अपना आप को पूरे शामिल किया है. God has gone all in for us. ठीक है, आप यीशु मसीह के बारे में सोचिए, उस स्वर्ग का जो महिमा को छोड़ के ऐसे जगह, पाप से भरे हुए जगह में आकर अपना आप को क्रूस में बलि किया है. He gave up everything. जो उसका सब था, जो उसका जो प्रिविलेज था, वो सब छोड़ के आके आपके लिए, मेरे लिए पूरा दे दिया. वो गेत्सेमनी में ये नहीं कहा कि प्रभु ठीक है आप कुछ और करके मुझको बचा लो, हम भाग रहा है. ठीक है, ये नहीं कहा प्रभु ये कटोरा मुझसे उठा ले, लेकिन मेरा नहीं, आपका इच्छा मुझ में पूरा हो. He gave everything for you and me. आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह पूरा शामिल किया. That's why we can come all in for Christ. We can trust him कि he will not fail us. That's why हम लोग ये कह रहा है कि हम सब उसके लिए शामिल हो सकता है. Everybody say all in for Jesus. अब सो नहीं रहा है ना, all in for Jesus. Yes. So इसीलिए ये यीशु मसीह के लिए पूरे शामिल होने का निर्णय जो है परमेश्वर ढूंढता है. और ये बात को आप जाने कि ये निर्णय जो है डेली, ठीक है, डेली निर्णय है, डेली कमिटमेंट, डेली डिसीजन है. यहाँ में जो ये 3 लोग को यीशु मसीह जो एनकाउंटर किया है, दिस गाइज आर अराउंड जीसस ऑलरेडी. ये नहीं कि यीशु मसीह को पहले बार मिला, यीशु मसीह को मालूम नहीं है, ये बात नहीं है. यीशु मसीह को वो लोग जानते हैं. इनफैक्ट दे वर गोइंग ऑन देयर वे. ठीक, वो लोग रास्ता में जा रहे थे. इनफैक्ट 2 of the guys come and make a declaration. यहाँ में 2 लोग घोषणा किया, यीशु आपके पीछे में हो लूँगा. ठीक है ना. But on this particular day they didn't choose to go all in. What can be a hindrance? क्या हमें रुकावट कर सकता है ये डेली डिसीजन जो यीशु मसीह के साथ हम पूरा शामिल होने में? मे बी बच्चे आपके घर में है तो आप समझ में आ जाएगा. This will happen, definitely happen, and आप इसी को एक्सपीरियंस किया हुआ होगा. ठीक है ना. मान लो कि आपका रूम को साफ करो तो वो बोलेगा नहीं, क्यों?
अगर कारण पूछेगा तो आई डोंट वांट, क्योंकि मुझको मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आपका दांत को साफ करो, ब्रश करो सुबह, ठीक है, बोले नहीं आई डोंट वांट, ठीक है। उसके बाद आपका बाल को कोम करो, आई डोंट वांट। आपको होमवर्क को ख़त्म करो, आई डोंट वांट, ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं ना नहीं अभी नहीं करेंगे, नहीं मन नहीं है, ठीक है। आपको खाना को ख़त्म करो, नहीं हम ख़त्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। नहीं नहीं जो है बहुत हो जाता है ना। एंड आई थिंक सम टाइम वी एज ए क्रिश्चियंस वी डू दिस टू आवर गॉड। परमेश्वर को कभी कभी हम लोग ऐसे कहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि अभी आज ये करो, लेकिन हम बोला नहीं हमको मन नहीं है, ठीक है। और कभी परमेश्वर बोलेगा उसको आप माफ़ करो, कैसे हम करेगा, हम माफ़ नहीं कर पाएगा, नहीं हमको मन नहीं है, ठीक है ना। इनकरेज इच अदर, किसी को आप बात करके प्रोत्साहित करो, नहीं हमको वो व्यक्ति को बात करने के लिए मन नहीं है, मुझे मेरा मन में हम लगता नहीं है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टॉक टू हिम, ठीक है ना। और परमेश्वर कहता है प्रे फॉर समबडी, किसी के लिए प्रार्थना करो, आई डोंट फील लाइक प्रेइंग, ठीक है। नहीं हम प्रार्थना नहीं कर पाएगा, हमको प्रार्थना करना नहीं आता, ठीक है ना। और परमेश्वर बोलेगा तो गो विजिट दैट पर्सन इन दिस वीक, ये सप्ताह में जाकर इस परिवार को विजिट करो। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, हम कैसे जाएगा, बहुत गर्म लग रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम इतना गर्मी में बस में जाना पड़ेगा, इतना दूर है, हम जाकर क्यों विजिट करेंगे, ठीक है ना। और परमेश्वर बोलेगा नहीं आपने उसका नाम उठाया ना, ही नीड यू नाउ, ही नीड योर प्रेयर, कॉल करो, कॉल करके थोड़ा पूछो क्या हो रहा है। नहीं अभी हमको मन नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी जो परमेश्वर कहता है उठो बाइबल पढ़ना चाहिए, जो प्रार्थना करो, हम लोग बोलते हैं मन नहीं है, आज नहीं कर पाएगा, मे बी नॉट टुडे लॉर्ड टुमारो, ठीक है ना। सो वी प्रोक्रेस्टिनेट फॉर टुमारो फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। सो यहाँ में यीशु मसीह जो कहना चाह रहा है वो वही है कि व्हाट अबाउट नाउ, व्हाट अबाउट टुडे, नो योर डिसीजन दैट यू हैव मेड लॉन्ग बैक, आर यू कंटिन्यूइंग, क्या अभी भी प्रेजेंट मे बी आप कंटिन्यू कर रहे कि नहीं, दैट मैटर्स, वो मैटर करते हैं परमेश्वर के राज्य में, ठीक है। सो देयर इज अ डिसीजन आई हैव टू मेक टुडे एंड से आई गॉट टू मूव बियॉन्ड माय फ्लेश, what I want, and I got to do what is right in my life. जो मेरा शरीर कहता है, जो मैं जो चाहता है मेरे शरीर, ठीक है, उसी को पार करके मैं निर्णय लेने का जरूरत है। Because when we come to Christ, our flesh, मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर में आता है ना तो हमारा शरीर और पवित्र आत्मा हमेशा लड़ता है। पवित्र आत्मा हमेशा आपको प्रोत्साहित करेगा कि ये करो जो आपके लिए लाभदायक है, जो परमेश्वर का जो वो आनंद का वैल्यू के लिए आपके लिए प्रॉफिट होगा, उन बातों को पवित्र आत्मा आपको करने के लिए encourage, he will always encourage you, because Jesus said when the Spirit of God comes, he will always lead you to the right path. इसीलिए पवित्र आत्मा कभी भी आपको जो बोलेगा तो आपका खराब के लिए बोलेगा नहीं, आपका भलाई के लिए बोलेगा, आपका भलाई के लिए हमेशा उस छोटा आवाज में बोलेगा। लेकिन उसी का खिलाफ में हमेशा कौन होता है, हमारा शरीर, द फ्लैश, द वॉइस ऑफ योर फ्लैश, हमारा पुराना स्वभाव जो शरीर का आवाज है उसका खिलाफ में लड़ता है, यू नो। दैट्स व्हाई जीसस इज टेलिंग यू एंड मी हियर, this a decision, there is a daily decision that you need to make, you got to make, hearing the voice of the Holy Spirit, being sensitive to the voice of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का आवाज को ध्यान देते हुए आपको निर्णय लेने का आवश्यकता है, ये बात कह रहा है। सो डेली डिसीजन, ओके। सो यहाँ पे जो 3 लोग जो था, they had individual price to pay, ठीक है। जो बुलाहट जो है 3 लोग मूल्य चुकाने के लिए है, ठीक है। They all had different situation, they all had different things and different reason in their life. बहुत सारा कारण, बहुत सारा परिस्थिति वो लोग के जीवन में है,
all three of them had a call to go all in for Jesus. ये तीनों को जैसे यीशु मसीह ने हम सबको पूरा शामिल होने के लिए बुलाया है, ये तीनों को भी बुलाया गया है. So when he called, we got to focus on Christ. यीशु मसीह में हमारा ध्यान रखना है. We got to have vision towards our calling. जो बुलाया है वहाँ पे हमारा ध्यान, हमारा दर्शन जो है रखना है. ठीक है ना. इमेजिन करें जब आप यहाँ पे देखते रहेगा तो आप आगे नहीं जा पाएंगे. गाड़ी में आप जब देखते हैं, चाहे 2 व्हीलर में हो चाहे 4 व्हीलर में हो, आपका रियर व्यू होता है ना, मिरर, और साइड ग्लास होता है ना, वो क्या के लिए रखा जाता है? आप वो देख कर चलाने के लिए नहीं रखा जाता है. अगर आप रियर व्यू में देख कर चलाएगा तो आगे जाकर किसी को ठोक देगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा. You cannot reach your destination. The rear view is for some time. थोड़ा like सेकंड के लिए आपको थोड़ा देखना है कि आपका पीछे कौन है. साइड में थोड़ा देखना है कि कौन आपका राउंड साइड से आ रहा है, थोड़ा देखना है. लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है कहाँ होना चाहिए? जो विंडशील्ड है ना बहुत बड़ा, वहाँ में लगाना है. एंड यू कैन नॉट लुक डाउन ऑल्सो, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, देन ओनली यू कैन ड्राइव प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल मेक एक्सीडेंट. So think वैसे there is a danger of focusing right now here. ठीक है ना. और there is a danger of dwelling in our past. जो हो चुका है उसमें आप dwell करना danger है. There is a danger. ठीक है. It will not take you forward. That will not take you forward to the purpose that God has for you. Connecting our purpose to God's purpose and changing our world. अगर हम लोग इस जगह में जो हम कर रहा है, जो मैं हूँ वहाँ में मैं कंफर्टेबल है, इससे हम छोड़ नहीं सकते हैं. ये सिचुएशन हमको पसंद आ रहा है, यहाँ में रह जाएंगे. या तो जो मैंने जो किया था, जो मैं करता था, जो मैंने किया था, उस चीज़ जो है अच्छा है, वहाँ पे हम ड्वेल करते रहेगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे. That's why Jesus is telling us it's a matter of daily decision. Hebrew 12:2 में लिखता है इसलिए. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. बाइबल कहता है कि we got to look at Jesus and follow his example. हम लोग का मसीह का चल चलन जो है क्या करना है? बाइबल कहता है कि हम लोग को यीशु को देखना है और यीशु का उदाहरण को हम लोग को उदाहरण में चलना है. हालेलुया. So the Bible says looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that set before him endured the cross. यीशु मसीह का जो क्रूस का जो सफर जो था बहुत मुश्किल था. आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखेगा तो पिक्चर में भी देखकर आप इमेजिन नहीं कर पाता है. अब रियलिटी में देखिए, रियलिटी के बारे में आप सोचिए. वो दुख, वो दर्द, वो शर्म को लेकर कि उस कल्वरी की ओर जाने का जो सफ़र जो था, अभी हम लोग गुड फ्राइडे आने वाला है, इस सब के बारे में बात करेगा. वो बहुत दिक्कत है. लेकिन हाउ ही कुड surrender everything to his father because his focus is not here. उसका जो ध्यान होता है अभी के लिए नहीं सोचा है, अभी के लिए नहीं देखा है. बाइबल कहता है कि who for the joy that was set before him, जो ग्लोरी, जो महिमा जो उसके बाद आएगा उसमें ध्यान लगाया. इसी का कारण he could endure the cross. क्रूस का सफर जो है उसको सहा पाए. तो इसीलिए he could have victory over it because he saw the glory, not here, there. Okay, so हम लोग को परमेश्वर जो बुला रहा है इस डेली कमिटमेंट. ओके, जो आप 1 महीना पहले कमिटमेंट लिया है, 1 साल पहले कमिटमेंट लिया, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा. लेकिन what about today? Are you doing it? क्या आप कर रहा है? क्या आप फॉलो कर रहा है? उस बात को आपको पूछना
चाहिए. So there is a danger, in dwelling in the past and dwelling in right now here. No, we are too comfortable to change. We don't want to give it up. We don't want to change. No, ये मेरे लिए अच्छा है. So when we are too comfortable with that, the danger is that, we cannot comprehend what God might have something better for us. जो परमेश्वर हमारे लिए इससे भी बेहतर है, उस बातों को हम लोग पहुंच नहीं पाएगा और पा भी नहीं पाएगा. ठीक है ना. That's why Jesus is calling us forward. That's why we have to think about the current commitment. जो मैंने पिछले बार लिया था, जो मैंने 1 साल के पहले लिया था, कारण ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात को we need to always remind ourselves. So to end, खत्म करने के लिए, I want to lay out these 3 points. ठीक है, बहुत जल्दी करके खत्म हो जाएंगे ये 3 points जो है. To understand what does it means to live behind the past. What does it mean to say I'm not going back, no turning back. ठीक है ना. The first one is my decision today should reflect my heart. जैसे मैंने भी कहा, वो बात ये है, जो आपका डिसीजन जो आपने लिया है वो हमेशा आपके जीवन में, आपके हृदय में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. My current decision should validate my past commitment. ठीक है ना. अगर आप प्रभु के लिए जी रहा है तो हम सब ने कहीं ना कहीं प्रभु के लिए निर्णय लिया है. All of us have commitment to Jesus. ठीक है ना. But the challenge जो है, जो चुनौती जो बाइबल की ओर से जो कहता है वो क्या है? As much as we have loved him, as much as we have followed him, as much as we have come till here, the Bible challenges us, today if you hear his voice, don't harden your heart. अगर आज आपने उसके आवाज़ को सुना है तो क्या है? आपका हृदय को कठोर नहीं रखना है. ठीक है. Today, if God speak to you, don't close your heart. अगर आज परमेश्वर आपको कह रहा है तो आपका हृदय को आप बंद करके मत रखिए. ठीक है. If God has stirred you up, don't make excuse away. ठीक है. आप excuse बहाना बोलते हैं ना, आप बहाना बन के खत्म ना करिए. तो listen. ठीक है. सुनिए उसकी आवाज को and remain in the heart commitment you have made for Jesus. So my decision today should reflect my heart. ठीक है ना. जो मैंने उसके लिए पूरा शामिल होने के लिए दिया है, उसी को हम डेली जीना है. The second thing is I am ready for God to stretch me. I should be ready for God to stretch me. हिंदी में बोलेगा तो मैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सामने में तैयार होना है कि परमेश्वर जो आप खींचना चाहता है, ठीक है, आपका योजना को पूरा करने के लिए मेरे जीवन वो आप करिए, हम तैयार हैं. ठीक है. वही होना चाहिए. ठीक है ना. When you get good stretch मतलब मालूम है ना, सुबह आप उठते हैं तो हम सब स्ट्रेच करता है ना, बहुत मज़ा आता है ना. नींद से जब उठता है तो एक बार तो स्ट्रेच करना है. अभी भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. और स्ट्रेच वही है कि सिर्फ स्ट्रेच खत्म नहीं होता है, आवाज़ निकालने से मज़ा आता है ना, करके निकालने से अच्छा आता है ना. सो परमेश्वर हम लोग को स्ट्रेच करना चाहता है. हम लोग अपना आप को लिमिट कर देता है. परमेश्वर जो हमारे लिए योजना है, इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद गॉड्स पर्पस, फॉर गॉड टू फुलफिल हिज पर्पस, ही विल स्ट्रेच यू. परमेश्वर आपको अपने योजना में शामिल हो रहा है और उसका योजना आपके जीवन में पूरा होना है तो परमेश्वर आपको थोड़ा खींचेगा, आपको तानेगा. ठीक है ना. नो, द लाइफ ऑफ ऑल इन इज आई एम डिसाइडिंग टू लिसन एंड ओबे हिम, एंड ऑल्सो मीन नाउ आई एम ऑलवेज रेडी टू स्ट्रेच बाय गॉड फॉर हिज पर्पस. मैं अभी तैयार है, यीशु मसीह मुझको जहाँ खींचना है खींचो, और जो मेरे जीवन में उसका योजना जो है, क्योंकि मुझसे वो बेहतर जानता है और मेरा योजना खुद का योजना से परमेश्वर की योजना मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं उसके हाथ में अपना आप को शामिल कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है. प्रभु जहाँ आप खींचना चाहते हैं खींच लीजिए, आपका योजना मेरे जीवन में पूरा होने दे. ठीक है ना. वी शुड बी विलिंग
वी शुड बी विलिंग, हमको तैयार होना है, प्रभु मुझको खींच ले। मतलब है कि आपके योजना के लिए मुझको थोड़ा खींच लो, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग नहीं करके प्रभु खींच रहे, लेकिन ये लाइन से हम बाहर नहीं निकलेगा ना, करते हैं ना, नहीं हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। प्रभु बोल रहे हैं थोड़ा इस बॉक्स के बाहर थोड़ा निकलो ना, नहीं, लेकिन हम लोग नहीं, यहाँ ठीक है, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ से हम हिलेगा नहीं, यहाँ से हिलेगा तो मेरा जगह कोई और ले लेगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है यहाँ में आपके लिए बेहतर है, लेकिन हम लोग यहाँ ना पकड़ के रखता है, नहीं करके ना ऐसे पकड़ के रखता है ना, ऐसे होता है कि नहीं। सो गॉड वांट्स टू स्ट्रेच यू बिकॉज ही हैज अ वंडरफुल एंड बेटर प्लान फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। डेविड स्ट्रेच फ्रॉम बीइंग अ शेपर्ड बॉय टू बीइंग अ किंग। जैसे हमने बोला आप यहाँ रहना चाहते हैं, परमेश्वर यहाँ में खींचना चाह रहा है, ठीक है। अगर डेविड नहीं बोलता तो कभी राजा नहीं बनता, लेकिन डेविड वो विलिंग हुआ कि यस प्रभु खींच लो आप, जहाँ में हमको जितना पोजीशन सब खींचना चाहिए, विलिंग हुआ तो वो राजा बना था, नहीं तो चरवाहा बन के खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मोसेस कहा था ही वॉज इन द डेजर्ट बट गॉड स्ट्रेच्ड हिम टू लीड द नेशन ऑफ इजराइल। इजराइल को अगुवाई करने के लिए, अगुवा के लिए चुना गया है। डिसाइपल्स, उसका चेले लोग क्या थे? They were stretched from being fishermen and tax collector, मछुआरा और चुंगी लेने वाले थे, वो लोग को क्या बना दिया? God has stretched them out and made them to be apostles and lead the church. कलीसिया को लीड करने के बना दिया। Paul, ठीक है ना, Paul stretched towards his goal. उसके बाद क्या करते थे? He began to press into places, planting churches. He became a great missionaries. He became a great church planters, ठीक है ना, raising leaders, doing something he had never done before. Why? Because they allow God to stretch them. Now that's why we should allow God to stretch us. इसीलिए हम लोग को willing होना चाहिए, ठीक है। Last one, I will stand my ground. The third man says, ठीक है, तीसरा वाला व्यक्ति जिसे बोला है I will follow you, but मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन बोलते हैं let me say farewell to those at home. And Jesus said, look, no one that puts their hands to the plow and looks back is worthy or fit for the kingdom of God. आज हम लोग ये ऑल इन का सीरीज अब खत्म कर रहा है, तो आई वॉन्ट टू जस्ट चैलेंज यू, इवन इंक्लूडिंग मी, जो हम लोग प्रचार करके सुन के ख़त्म नहीं होना है। हम लोग अपना आप को देखना है कि वेदर आई एम इन, आई एम ऑल इन, और आई एम हाफ इन, और आई एम नॉट इन, ठीक है ना। ये बात को हम लोग को देखना है यीशु के लिए, यीशु के लिए। एम आई ऑल इन, एम आई पार्ट वे इन, एम आई नॉट इन एट ऑल, इस बात को हम लोग को देखना है, एंड इफ आई एम इन, नॉट यस्टरडे इन वाला नहीं है, नॉट वन नो ऑल इन वाला नहीं है, व्हाट अबाउट टुडे? अभी भी इन हो रहा है, अभी am I obeying and continuing in what he has called me? We got to ask ourselves, हम लोग को पूछना है, ठीक है ना। That's why Philippians 3:16 says, let me read, we must hold on to the progress we have already made. हम लोग ने थोड़ा प्रोग्रेस बना के अभी यहाँ तक आया है, ठीक है। प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु को हमें अपना निर्णय लेकर हम अपना आप को समर्पित करके यहाँ तक आया है। वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर नॉट डिक्रीजिंग बट वी आर इंक्रीजिंग, नो। सो उसको क्या बोल रहा है? वी मस्ट होल्ड ऑन। यीशु मसीह आने वाला है, होल्ड ऑन, हिज टाइम इज वेरी नियर, होल्ड ऑन, ही कैन कम एनी टाइम, होल्ड ऑन, मे बी टुमारो, होल्ड ऑन टू योर कमिटमेंट। हालेलुया, हालेलुया। आर वी होल्ड ऑन टू आवर कमिटमेंट? प्रभु कहता है कि होल्ड ऑन टू योर कमिटमेंट, ठीक है। वी गॉट टू होल्ड ऑन। दैट्स व्हाई इफिशियंस 6 में अगर पढ़ेगा तो लिखा है, स्पेशली वर्स 11, ठीक है, पुट ऑन ऑल ऑफ गॉड्स आर्मर्स so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. जो the reason of armor, जो प्रभु ने हम लोग को जो हथियार दिया हुआ, कारण क्या है? ताकि हम खड़ा हो सके,
सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। लड़ने का काम प्रभु कर दिया है। प्रभु ने क्रूस में शैतान का हर एक काम को खत्म कर दिया है। अब हम यीशु मसीह का दिया हुआ जय, जो विक्ट्री में हम लोग को खड़ा होना है, टू स्टैंड इन आवर ग्राउंड। तो टुडे डू आई स्टैंड इन दैट ग्राउंड? क्या मैं खड़ा हो रहा है कि नहीं? Am I stand firm in my commitment? Am I stand on my ground? ठीक है? Not of my strength, not of my goodness, but of Jesus. यीशु का विजय में, यीशु ने मेरे लिए किया उसी का काम के ऊपर हम खड़ा हो रहा है कि नहीं, इस बात को हम लोग को पूछना है। हम ये नहीं कह रहा है कि आप खुद का ताकत में करो, खुद का सामर्थ में लो, खुद का भलाई में करो। नहीं, यहाँ पे जो कह रहा है, यीशु ने जो किया है उसके ऊपर में खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। So today we are going to conclude the series called All In. So we got to say no turning back. हमने यीशु के पीछे चलने के लिए और यीशु के लिए पूरे शामिल होने के लिए निर्णय लिया है। हम पीछे नहीं मोड़ेंगे। यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ठीक है, दिस शुड बी आवर डिक्लेरेशन टुडे। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आई एम नॉट हाफ इन, आई एम नॉट completely not in, I am full in, and I'm not going to turn back. And from here, I'm going to progress. Hold on to His goodness, and I'm going to progress, okay, till He comes back. Hallelujah, hallelujah. Let's pray. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Every eyes closed. Okay, let us not be distracted, and let us put our focus on Jesus, and let us think about everything that we have heard today, that what it means to come all in for Christ, and what it means to say no turning back. प्रभु, हम जानते हैं जब हमें तो बुलाते हैं तो हमें आधा नहीं लेकिन पूरा चाहते हैं। इसलिए आज हम फिर से एक बार ये बात को घोषणा करते हैं, हम पूरे अपना आप को आपके लिए, आपका राज्य के लिए शामिल करते हैं। We declare today once again total commitment to follow you completely with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength, oh God, to come in for you. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज कलीसिया में बैठे हुए सभी लोग के ऊपर हम आपका सहायता मांगते हैं। आज हमने आपके वचन पर के ये 3 व्यक्ति के प्रभु जीवन के द्वारा आपका चेले बनने का और आपके लिए हम जीने के मतलब क्या है उस बात को हम देख पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको बुलाया भी प्रभु खाली के लिए नहीं, लेकिन आपका योजना, जो अच्छा योजना के साथ हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आपने बुलाया है। और हम सब ने आपका बुलाहट को जवाब देते हुए हमने निर्णय लिया है। और हम विश्वास करते हैं कि आज से हम जब हमारे जीवन को आपका योजना में जोड़ा है तो आप हमारे जीवन में प्रभु जो भी भलाई जो आप उत्पन्न करना चाहते हैं वो हमारे जीवन में करेगा। प्रभु जी, हम आज फिर से आपके सम्मुख में इन बातों को प्रभु घोषणा करते हैं कि प्रभु हमारा निर्णय जो हमने लिया है, हो सकता है कोई लोग एक महीना पहले हो, कोई लोग 1 साल पहले हो, 1 सप्ताह पहले हो और 5-10 साल पहले हो, जो भी आपके लिए हमने निर्णय लिया है होने दे कि हमारे जीवन में प्रभु हमेशा डेली रिफ्लेक्ट हो प्रभु जी प्रभु। और आप क्योंकि हमारे लिए अच्छा बेहतर जानते हैं, इसलिए हम तैयार हैं जो भी कार्य के लिए आपका योजना को पूरा करने हम लोग को जो खींचना चाहता है उसी के लिए हम तैयार हैं। प्रभु हमारे जीवन में काम करें। और प्रभु हम आपके लिए, चाहे हमारा परिस्थिति
कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी कठिन के समय में हो प्रभु, हम उसी में खड़ा होने के लिए आपका जय जो आपने हमारे लिए क्रूस में जो दिया उसमें खड़ा होकर प्रभु आप वापस आने तक खड़ा होकर हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे बीच में आकर आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोगों ने प्रभु अपने जीवन को खोलते हुए आपके साथ ये निर्णय फिर से लिया, सबके ऊपर आपका आत्मा का नई अभिषेक भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम सब बोलेंगे आमेन।